Hello students, how are you? I hope all you are good. So today we are going to discuss another topic of Fourier series, that is even and odd function. So first we will revise our discontinuous function and we will solve one problem based on the discontinuous function. Then we will start our even and odd function. Let's see. So discontinuous function, we already discussed about the discontinuous function, and here again I am trying to explain you the discontinuous function. So see, what is the discontinuous function? At a point of discontinuity, Fourier series given by the value of fx as a arithmetic mean of the left hand and right hand limit. This term this term is known as left hand limit and this term is known as right hand limit about the center point x naught or 0. What happened? See here, if your curve is like that one, this is your x naught, and if x naught is at origin x is equal to 0, then what happened? As usual, the left hand limit LHL is equal to fx naught minus h, and right hand limit s is equal to fx x naught plus h. Or what happened, if you all know that the limit h tends to 0 for both cases, okay, and if x is equal to x not is equal to 0, then our formula will reduce in this form. So take care, if this formula is like this one, so at x is equal to 0 we can solve our value like this one, okay. So now what happened? See one problem, that is question number 2. We already discussed one problem in our previous lecture. So what happened? The question, obtain Fourier series of the function fx is defined when the limit means the period range is minus pi to 0, then function gives the value minus 1 minus x, and when the limit is x ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई, जब x की वैल्यू 0 पाई के फंक्शन x होगा, तो हैंस सो दैट हमें ये प्रूव करना। अब इसी क्वेश्चन को कोई भी दूसरा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। इसी को कोई दूसरा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, और मॉड एक्स मतलब आपको पता है मॉड एक्स आई, इफ यू नो, इफ minus x is there and plus x is there, if you're taking the mod of this one, you always get the constant value, that means x, okay. Mod x means there is no negative value for one. So what happened when we break this limit in the components, that means minus pi लेस देन एक्स लेस देन ज़ीरो, सो ज़ीरो से लेस सारी वैल्यू क्या होंगी? निगेटिव होंगी। तो इस केस में एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। और केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2, जब हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे 0 ग्रेटर देन एक्स लेस देन पाई, तो इस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन आर द सेम आइडेंटिकल क्वेश्चन, तो इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। तो आपको मैंने ब्रेक कर दिया। अगर आपका ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो फर्स्ट वी कन्वर्ट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, देन वी विल सॉल्व इट। नाउ चेक द सॉल्यूशन। क्या गिवन है? गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और minus pi less than x less than pi, that is fx is equal to minus x for minus pi less than x less than 0, and x for
0 less than x less than pi. So since we know that fx is equal to a naught by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx equation number 1. In order to find in order to find Fourier series Fourier series Fourier series we have to calculate we have to calculate the values of a naught an and bn. This implies that calculation calculation for a naught. Since we know that since we know that a naught is equal to 1 upon pi minus pi to plus pi fx dx. तो क्या हो जाएगा? This implies that a naught is equal to 1 upon pi bracket minus pi to 0 fx dx plus 0 to pi fx dx. Put the value, so a naught is equal to 1 upon pi. We have minus pi to 0, माइनस पाई से 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू थी माइनस एक्स प्लस 0 टू पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू थी एक्स डी एक्स. तो दिस इम्प्लाइज दैट ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेट करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट माइनस पाई टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट 0 टू पाई. So now we will put the limit. This implies that a naught is equal to 1 upon 2 pi and ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर छोड़ा 0 माइनस माइनस पाई होल स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस इस केस के लिए अपर लिमिट पाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं. This implies that a naught is equal to 1 upon 2 pi. This gives us minus, and from bracket we get minus pi square plus pi square. At last we get a naught is equal to 1 upon 2 pi in bracket pi square plus pi square is equal to 1 upon 2 pi into 2 pi square. Pi will cancel, 2 will cancel. This implies that a naught is equal to pi. This is the value of a naught. Similarly, we will calculate the value of, now we will calculate the value of a naught. An calculation for an.
an is equal to, since an is equal to 1 upon pi minus pi 2 plus pi fx cos nx dx. This implies that an is equal to 1 upon pi minus pi to 0. fx की वैल्यू इस केस में है माइनस एक्स, cos nx ही रहेगा dx, प्लस दूसरी लिमिट थी 0 टू पाई, इस केस में फंक्शन की वैल्यू x है और ये हो जाएगा x cos nx dx, ब्रैकेट क्लोज. Now we will apply the formula. First function, second function, first function, second function, Euler rule. So this implies that an is equal to 1 upon pi in bracket first function into integration, this is minus x, so minus first function integration of second function sine n x upon n minus differential of first function and differential of first function and integration of second function 2 times, that gives you a plus cos nx upon n square, bracket close. Give this bracket as a curly bracket, otherwise you will get confused. Plus again first function into integration of second function, that means sine nx upon n minus plus cos nx upon n square, limit 0 to pi, and in this case limit minus pi to 0. So this implies that an is equal to 1 upon pi. When we put the upper limit, minus will here, when I will put upper limit, this term becomes 0 and this becomes plus 1 upon n square. When we put the lower limit, this lower limit, again this term becomes 0, so minus bracket लगा लेते हैं 0 and plus when you put pi here, you get cos n pi upon n square, bracket close, plus upper limit again sin pi, this becomes 0, plus cos n pi upon n square, lower limit, this becomes 0, this becomes 0, ब्रैकेट यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा लो, स्मॉल ब्रैकेट, this becomes 0 and plus 1 upon n square. कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखी, मैं बता दे रहा हूँ. सिंस sin n pi is equal to 0, whatever the value of n, and sin 0 is equal to 0, और फॉर्मूला यूज़ किया है cos n pi is equal to minus 1 to the power n होता है और cos 0 is equal to 1 होता है और cos minus theta is equal to cos theta होता है. तो जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी we will use this value. Now summarize it. जब इसकी समरी बनाएंगे तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं. तो this implies that an is equal to 1 upon pi, यहाँ से बचेगा आपका minus 1 upon n square, और this minus will gives you a plus, we have a cos n pi upon n square, यहाँ से आपका बचेगा प्लस का सेकंड ब्रैकेट से cos n pi upon n square और minus 1 upon n square. So finally we have an is equal to 1 upon pi, in bracket we have
एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिख देते हैं, एन स्क्वायर बाहर ले लिया तो बचेगा कॉस 2 कॉस एन पाई -2। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई इन ब्रैकेट कॉस एन पाई -1। ये हो गया। अब यहाँ पर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट, when n is odd, जब n ऑड होगा तो cos n पाई इज इक्वल टू आएगा -1। तो हमारे पास देन ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी, cos n पाई -1 इज इक्वल टू -2। ओके, so this implies that an is equal to 2 upon n square pi and in bracket -2. This implies that an is equal to -4 upon n square pi not pi square. So finally we have an is equal to -4 upon n square pi. Now case number 2. Case number 2, when n is even, जब n इवन होगा तो cos n पाई इज इक्वल टू +1 होगा। देन cos n pi -1 is equal to 0. So that is an is equal to 0 for an odd number. Okay, now we will write another heading, calculation for Bn. Calculation for Bn. Since Bn is equal to 1 upon pi integration minus pi to plus pi fx sin nx dx. So this implies that Bn is equal to 1 upon pi minus pi to 0 fx की वैल्यू -x sin nx। अब इसका दूसरा फंक्शन लिखेंगे 0 to pi fx की वैल्यू x sin nx dx. Again we will apply the integration by part. This is first function, this is second function, this is first function, this is second function. What is the formula? Integration of first function dot second function dx is equal to first function integration of second function minus integration d upon dx of first function, then write it into a bracket into integration of second function and after then we will integrate the complete output of this one again. तो सेकेंड फंक्शन का एक बार जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक बार फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, माइनस को बाहर हमने छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन x और साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस x, तो कॉस nx अपॉन n माइनस प्लस 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो साइन का 2 बार इंटीग्रेशन करने पाएगा क्योंकि
एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन आएगा, 2 बार करेंगे साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन की, तो आएगा फर्स्ट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रेशन आएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन विद माइनस साइन, और माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसकी लिमिट थी, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देते, इसकी लिमिट थी माइनस पाई से 0, इसकी लिमिट थी 0 से पाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, माइनस को बाहर रहने दो, अपर लिमिट रखते हैं तो आएगा 0 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट, जैसे पाई रखेंगे माइनस पाई रखेंगे, देखो ये माइनस पाई पहले से था, माइनस एक्स था, और यहाँ पर माइनस पाई आएगा तो पाई बचेगा और कॉस एन पाई अपॉन एन बचेगा। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले जब साइन एन पाई लेंगे तो आएगा प्लस 0, और अगला ब्रैकेट प्लस। अब सेकेंड पार्ट की, हम इस पार्ट की लिमिट की बात करने जा रहे हैं, तो ब्रैकेट में माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और ये हो जाएगा, अभी हम अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, प्लस 0 माइनस, अब लोअर लिमिट की बात करेंगे तो आएगा माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0, तो हमारा ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज हो जाएगा। अब सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनली बचेगा बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट पाई कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस पाई एन पाई अपॉन एन। ये दोनों वैल्यू आइडेंटिकल हैं, कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो बी एन की वैल्यू 0 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 0, बी एन 0 आ गया, ए नॉट इज इक्वल टू पाई था, एंड ए एन इज इक्वल टू था हमारे पास -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई। तो पुटिंग all the values in equation 1 we get, चलो रखते हैं, तो this implies that fx is equal to we have fx is equal to what we have, tell me, a naught means pi by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity a n की वैल्यू -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई कॉस एन एक्स, बी एन की वैल्यू 0 होने के लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 -4 अपॉन पाई कॉमन ले लेंगे, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बचेगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। एक ही यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सिंस एन इज ऑड नंबर, क्योंकि हम ऑड नंबर के लिए कैलकुलेशन करते पीछे में बता चुका हूँ। अब देखो एक चीज और बता दे रहे हैं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, सिंस फंक्शन इज discontinuous at x naught and x naught is equal to 0, then fx is equal to 1 upon 2 लिमिट, उसको बाद में कर लेंगे हम लोग, लिमिट बाद में लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट्स मीन्स f of x naught minus h प्लस f of x naught प्लस h, और हम सबको मालूम है h टेंड्स टू 0 है,
तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस f0 प्लस 0। अब हम जब फंक्शन चाहे नेगेटिव फंक्शन हो चाहे पॉजिटिव फंक्शन हो, दोनों केस में ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 0। तो दिस गिव्स यू 0। तो फाइनली व्हाट वी हैव, this implies that we have 0 equals to pi by 2 minus 4 upon pi sigma n is equal to 1 to infinity cos nx upon n square। देखो अल्टीमेटली हमारा आंसर तो ये एक आंसर आ गया, लेकिन हमें कुछ प्रूफ करना था। तो उस प्रूफ करने के लिए हम लोग बाकी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम रेड पेन से ही लिखेंगे, ब्लैक कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इस पाई को लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन पाई सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू सिग्मा n is equal to 1 to infinity cos nx upon n square। n square, so this implies that sigma n is equal to 1 to infinity cos nx upon n square is equal to pi square by 8। और this implies that ये हो जाएगा cos x upon n, n का मतलब 1, 1 square plus cos 3x upon 3 square plus cos 5x upon 5 square डैश, क्योंकि हमें केवल n की ऑड वैल्यूज लेनी है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू हर बार 1 आएगी, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। और हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। अब देखो ये प्रूव कर लेने के बाद हम लोग इवन ऑड, ऑलरेडी इसमें इवन ऑड का फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि अभी तक हमने इवन ऑड फंक्शन आपको बताया नहीं था, इसलिए मैंने इवन ऑड फंक्शन नहीं अप्लाई किया है। अब हम इवन ऑड आपको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, इसको आपको सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आई थिंक इतनी देर में आपने प्रिंट स्क्रीन ले लिया होगा। ओके, तो लेट्स सी इवन एंड ऑड फंक्शन। इन शॉर्टकट में आपको इवन ऑड फंक्शन समझना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडजस्ट, अगर कोई फंक्शन में हम एफ एक्स दिया हुआ है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, अगर एफ एक्स में हम माइनस एक्स लिखें तो यह आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स को माइनस एक्स, तो क्या हुआ, एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वापस एफ एक्स आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। और इसका ठीक अपोजिट अगर फंक्शन इवन नहीं है, इफ फंक्शन इज नॉट इवन देन इट इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन दैट इज, अगर हमारा f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। एक तो तरीका ये हुआ देखने का इवन और ऑड फंक्शन। दूसरा तरीका है बाई सिमिट्री। अब मैं आपको सिमिट्री समझाता हूँ। देखो मैं सामने आपके नहीं हूँ, मैं इतना डिटेल से, अब आपको मैं रेड पेन नहीं बल्कि
ग्रीन पेन लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इवन फंक्शन, a function fx is said to be even or symmetric function if f minus x is equal to fx. The graph of such function is a symmetrical graph and represent to y-axis. fx axis, fx means हमेशा याद रखना fx को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये तो क्या लिखा है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ही, ठीक है। पहले ये देखो, इस फंक्शन की अगर हम y एक्सिस देखें और y एक्सिस पे हम एक मिरर रख दें, एक इस y एक्सिस पे एक मिरर रख रहे हैं एक साइड में, तो ये जो ग्राफ आपका बनना, ये वाला ग्राफ सेम एज इट इज ग्राफ क्या होगा, ये वाला भी होगा। तो अगर मिरर इमेज रखने पर सेम ग्राफ दिखता है ऑन वाई एक्सिस, मिरर कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पे, तो उसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। आप इस फंक्शन में भी देख लो, अगर यहाँ पर ग्राफ रखोगे मिरर, तो हाफ जितना इधर है उतना ही इधर है, नीचे डाउनवर्ड एक लूप है हाफ लूप, तो डाउनवर्ड इधर भी हाफ लूप, तो ये भी इवन फंक्शन है। सेम कंडीशन यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ये यहाँ पर, तो ये आपकी मिरर, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। और एक डेफिनेट इंटीग्रल की आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, -a2 + a fx dx इज इक्वल टू 2a 0 to a fx dx। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इवन फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन कभी आप y एक्सिस पे अगर मिरर रखोगे, y एक्सिस पे मिरर रखोगे तो कभी भी आपको सेम इमेज रिप्रेजेंट, देखो इसमें क्या है, ये कर्व ऊपर है ये नीचे है, तो कभी भी मिरर इमेज सेम नहीं आएगी। लेकिन एक खास बात इसकी मैं आपको अलग से बताता हूँ, अगर हम अपना मिरर इसके डायगोनल में रखें, यहाँ पर 45 डिग्री पे आप रखिएगा, और अगर आपका कर्व सेम लगे, एक जैसा यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल दिखे, तब ये ऑड फंक्शन होता है। मैंने पहले क्या बोला, अगर फंक्शन इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। सेम इस कर्व में देखो, इसका पीक स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और इसका पीक स्टार्ट होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये ऑड फंक्शन का केस है। तो वही यहाँ पर समझाएगा, आप फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन और स्क्यू सिमेट्रिक इफ एफ माइनस एक्स माइनस एक्स, जैसे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, तो जैसे आपने एक्स ये माइनस एक्स रखा तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो देखो ये तो वापस फंक्शन आ गया, लेकिन एक माइनस साइन आपका वापस आ गया, क्या आ गया आपका, ये एफ एक्स आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक और ऑड फंक्शन हो गया। अब इवन ऑड फंक्शन की कुछ खास चीज़ें होती है, वो हम देखते हैं। अच्छा देखो, ऑड फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, अगर फंक्शन इवन होता है तो ये वैल्यू आती है, अगर फंक्शन ऑड होता है तो क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या थी, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, इंटीग्रल, ओके। तो ये तो हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रल उसके बारे में। अब हम आते हैं आगे। देखो जब हम इवन फंक्शन निकालते हैं तो बेटा आप देखो, इवन में v आ रहा है, तो आप इवन v आ रहा है तो v का मतलब इसको प्रोनाउंस का थोड़ा प्रोनाउंस करेंगे तो ये bn हो गया। तो इवन में bn 0 होगा और आपको a नॉट निकालना होगा और an निकालना होगा, इसके सिवा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखो तो मॉड x इज इक्वल टू, ये तो आपको मालूम है मॉड के अंदर कुछ भी रखेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो दैट मीन्स f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता। इसीलिए आपने देखा होगा bn उसमें क्या आया था, 0 आया था। ये पिछले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, इसकी लास्ट क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए कोई मतलब की चीज़ नहीं है, बट अब देखो, तो हमारे पास इवन फंक्शन है तो हमारे पास ए नॉट का फॉर्मूला है। यहाँ पर जब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये वाला टर्म रिमूव होगा और ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये तो 2 टाइम्स फॉर्मूला आता है। और सिमिलरली आपके पास ए एन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और बी एन बाई डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन की बात करते हैं तो आते हैं आगे।
तो ऑड फंक्शन में हमारा ए एन ए नॉट इज इक्वल टू 0, an is equal to 0, and bn we have to calculate. Okay, so these are the formula of odd. और odd का जब फॉर्मूला लिखोगे तो bn इज इक्वल टू होगा आपका 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो bn इज इक्वल टू 2/पाई और ये लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और द सीरीज ऑफ द ऑड फंक्शन विल कंटेन ओनली द साइन टर्म, क्योंकि आपको मालूम है बी एन क्या होता है, बी एन एसोसिएटेड होता है बी एन साइन एन एक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये खाली साइन सीरीज देगा, क्योंकि ए नॉट और ए एन दोनों जीरो हैं तो क्या होगा, कॉस का टर्म नहीं आएगा। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कुछ भी मिरर इमेज रख लो, नाइदर दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ये नाइदर इवन नॉर ऑड का केस है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब सो इवन ऑड फंक्शंस तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। गिवन, क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इक्वेशन 1। x sin x is a even function, so bn is equal to 0। ये इवन फंक्शन है इसलिए bn 0 है। since we know that fx is equal to a naught by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx। Equation number 2। So we have to calculate a naught and an। अब एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शन इवन कैसे है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, हमने एक्स ये पर माइनस एक्स लिखा तो ये जाएगा कितना, माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वापस आ जाएगा एक्स साइन एक्स। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा के माइनस साइन थीटा के। This implies that fx is equal to f minus x is equal to fx हो गया। और हमने यहाँ पर यूज क्या किया है, हमने यहाँ यूज किया है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ ए नॉट, कैलकुलेशन ऑफ ए नॉट।
since we know that A naught is equal to 1 upon pi 2 upon pi 0 to pi fx dx. This implies that A naught is equal to 2 upon pi 0 to pi fx की value x sin x dx. First function, second function. This implies that A naught is equal to 2 upon pi first function integration of second function sin x dx minus integration d upon dx of first function integration of second function and then whole integration. ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है बेटा. This implies that a and a naught is equal to 2 upon pi, ये हो जाएगा माइनस एक्स cos x लिमिट 0 to pi माइनस प्लस sin x लिमिट 0 to pi. सारी लिमिट रखेंगे. a naught is equal to 2 upon pi, तो ये आएगा माइनस पाई cos pi plus 0 plus 0 minus 0. This implies that a naught is equal to 2 upon pi into pi. cos pi की वैल्यू -1 होती है, तो 2 upon pi into pi by will cancel is equal to 2. So finally this implies that a naught is equal to 2. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर an. Since we know that an is equal to 2 upon pi 0 to pi, ये हमारा इवन फंक्शन के लिए फार्मूला होता है. वैसे तो लिमिट क्या है, गिवन लिमिट कितनी है, गिवन लिमिट इज माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई. बट इवन ऑड में 2 पाई फॉर्मूला चेंज होता है. एफ एक्स cos nx dx. So this implies that an is equal to 2 upon pi 0 to pi fx means x sin x cos nx dx. 2 को अंदर ले आते हैं क्योंकि ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 2 and 3 फंक्शंस, ये हमारा इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, ठीक है. इसलिए हम इसको 2 फंक्शंस में ब्रेक करेंगे. This implies that an is equal to 1 upon pi limit 0 to pi x 2 sin x cos nx into dx. Since हमें पता है, क्या पता है, since 2 sin a cos b is equal to sin a plus b माइनस साइन b माइनस a. ये फॉर्मूला मैं इंटेंसली यूज कर रहा हूँ. यूजुअली आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंस 2 साइन a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. बट अगर आपने a माइनस बी लिया, ये वाला टर्म लिया, तो क्या नुकसान होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ. तब आपका आ जाएगा, ये आएगा, ये इसके प्लेस पर आएगा 1 माइनस एन, और 1 माइनस एन से आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा n माइनस 1 से, ठीक है. ये हमें चाहिए, इसलिए
हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. यूज दिस फॉर्मूला. So this implies that an is equal to 1 upon pi 0 to pi x in bracket sine n plus 1 into x minus sine n minus 1 into x ब्रैकेट क्लोज dx. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. a n is equal to 1 upon pi square bracket integration 0 to pi x sine n plus 1 x dx minus integration 0 to pi x sine n minus 1 x into dx. देखो बेटा, दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. बस केवल एंगल में चेंज है और इससे हमारे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क. तो दोनों के इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे. ठीक है. तो नाउ this implies that an is equal to 1 upon pi in bracket first into integration of second. First means x, integration of second means minus sin का इंटीग्रेशन cos n plus 1 x करली ब्रैकेट लगा देते हैं, x ब्रैकेट क्लोज अपॉन n plus 1. फिर दो बार इंटीग्रेशन होगा तो प्लस साइन n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर. करली ब्रैकेट के अंदर इसको पूरा बंद कर दो. लिमिट 0 टू पाई. सिमिलरली सेकेंड पार्ट का जब करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ये आएगा माइनस एक्स कॉस n minus 1x upon n minus 1, and then we have a plus sine n minus 1x upon n minus 1 का whole square. Again the limit is 0 to pi and then square bracket will close. So this implies that an is equal to 1 upon pi. देखो अंडरलाइन करके मैं चलता हूँ. जब इस पार्ट में हम लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, ये चेक करो. इस पार्ट में लिमिट रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस पाई कॉस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1. जब इस पार्ट पे अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 0. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 0. जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ड्यू टू दिस x ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 0 एंड माइनस लोअर लिमिट 0 रखते ही ये पूरा पार्ट साइन 0 0 होता तो ये 0 हो जाएगा. तो हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया. सिमिलरली हमें सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना है. ठीक है. तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1. बाकी सब कुछ 0 प्लस 0 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज. This implies that an is equal to 1 upon pi in bracket minus pi 1 minus 1 की होल पावर n plus 1 upon n plus 1 माइनस माइनस प्लस पाई cos, इसको भी रिमूव कर दो.
माइनस वन की होल पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन सिंस cos n पाई इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n। तो जो भी n के प्लेस पे है वो पावर में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a n इज इक्वल टू वन अपॉन पाई। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में हम कॉमन लेंगे माइनस पाई माइनस वन की होल पावर n प्लस वन। तो ब्रैकेट में आएगा वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन अपॉन n माइनस वन। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन की पावर n प्लस वन, ब्रैकेट में आएगा n माइनस वन माइनस n माइनस वन अपॉन n माइनस वन n plus 1 and n minus 1, and n will cancel out. We have, this implies that a n is equal to minus 1 की power n plus 1 upon n square minus 1 into minus 2. Since n a square minus b square is equal to a plus b, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट वी हैव ए एन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन की पावर n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन। Putting the values of a naught and a n in equation 2, we get क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट का मतलब 2/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन प्लस ज़ीरो। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, सिंस n इज इक्वल टू वन पे, ये पार्ट देखो कायदे से, n इज इक्वल टू वन पे, is at n is equal to 1 पे n square minus 1 is equal to 0, that is a1 is equal to infinity आएगा जनरल फॉर्म से। तो इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग गिव इट इक्वेशन नंबर 3। सो वी विल कैलकुलेट a1 सेपरेटली। तो डालेंगे हेडिंग कैलकुलेशन फॉर a1, क्योंकि तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता है यहाँ पर, सिंस केस फेल हो गया। तो a1 के लिए क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू द 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स था, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो a1 इज इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स का मतलब x साइन x, और ये हो जाएगा n की वैल्यू 1 रख रहे तो ये हो जाएगा कॉस x dx। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1/पाई लिमिट 0 टू पाई x 2 साइन x कॉस x, और हम सबको मालूम है किसके बराबर होता है। दिस इंप्लाइज दैट वी हैव a1 इज इक्वल टू 1/पाई x इंटू साइन 2x dx, ये हो जाएगा 0 टू पाई। So this implies that a1 is equal to 1/पाई
and this is first function, this is second function. So this implies that minus x cos 2x upon 2, limit is 0 to pi, and then plus sine 2x upon 4, that limit is again 0 to pi. So after calculating the limit, we have a1 is equal to 1 upon pi, and that gives you a minus 1 upon 2 in bracket pi cos 2 pi minus 0 plus 1 by 4, 0 minus 0, अपर लिमिट साइन अपर लिमिट और कॉस दोनों, साइन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में 0 हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 1 अपॉन 2, इस पार्ट की वैल्यू होगी 1, तो बचेगा केवल पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो दिस इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. अब ये वैल्यू कहाँ करेंगे? पुटिंग this value in equation 3. तो क्या आया था हमारे पास? हमारे पास आया था fx इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी, ये था हमारे पास माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. तो इसमें हम क्या करेंगे? a1 की वैल्यू अलग से रखेंगे, तो x इज इक्वल टू साथ में cos nx था, तो 1 प्लस a1 की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 1/2. और a1 के साथ क्या आएगा? इस पार्ट में जब 1 रखा तो cos x आएगा प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 cos nx. अब n की वैल्यू 1 से 2 तक हम रखते चले जाएंगे. तो दिस इम्प्लाइज दैट fx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 cos x. अब रखेंगे जब n की वैल्यू 2, तो आएगा माइनस, देख लो जैसे जब 2 रखोगे तो ये ऑड हो जाएगा, माइनस 1 की पावर ऑड 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा अभी एक मिनट रुक जाओ, सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख लो ना, गड़बड़ करोगे, माइनस 1 की पावर n, और नीचे वाले को ब्रेक कर दिया हमने n प्लस 1 n माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 था, और साथ में यहाँ पर हमारे पास आएगा cos nx. अब ब्रेक करते हैं इसको हम. दिस implies that fx is equal to 1 minus 1/2 cos x. अब n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो आएगा माइनस cos 2x अपॉन 3 इंटू 1 प्लस, अगला प्लस आएगा cos 3x अपॉन n की वैल्यू 3 है, तो आएगा 4 इंटू 2 प्लस cos 4x अपॉन, अगला आएगा 5 इंटू 3 डैश डैश टू ऑन. बेटा एक चीज़ हमसे मिसिंग है, वो क्या है? ये एक 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर था, वो बाहर लिखा जाएगा, जो भूल गए, दिखाते हैं आपको ऊपर. जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये वाला जो माइनस 2 था, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर 2 और आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 बाहर रहेगा,
तो 2 यहाँ पर भी रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, तो ये 2 मिसिंग था तो वो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो दिस implies that x sin x is equal to 1 minus 1 by 2 cos x minus 2 cos 2x upon 1 into 3 plus 2 into cos 3 by x upon 4 into 2 minus 2 into cos 4x upon 5 into 3 plus dash dash so on, putting x is equal to pi by 2। क्योंकि बेटा क्यों कर रहा है ऐसा बता रहे तुम्हें। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें देखो ये डिनोमिनेटर 1 3 लाना है, 2 और 5 लाना और ये लाना है, मतलब कहीं इवन वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही बच के, तो इवन वैल्यू नहीं बचानी है इसलिए हमने पाई बाई 2 रख दिया, ऑटोमेटिकली इवन वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो दिस इम्प्लाइज दैट पाई बाई 2 sin pi by 2 equals to 1 minus 1 by 2 cos pi by 2 minus 2 into cos 2 pi by 2 upon 1 into 3 plus 2 cos 3 pi by 2 upon 4 into 3 4 into 2 minus 2 cos 4 pi by 2 upon 3 into 5 dash dash so on। अब मैं रेड पेन से कुछ सर्किल बना रहा हूँ, कायदे से देखना। ये पाई बाई 2 था, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट, अभी देखो, तो दिस इम्प्लाइज दैट पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 1 माइनस 0 और ये आएगा माइनस 2 इंटू कॉस पाई अपॉन 1 इंटू 3। अगला 0 आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 2 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 3 इंटू 5 डैश डैश माइनस डैश डैश सो ऑन। So this implies that pi by 2 minus 1 equals to, ये आ जाएगा माइनस 2 हम कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3, ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 आएगा, माइनस 2 बाहर ले लिया था, यहाँ से आएगा प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस डैश डैश सो ऑन। तो यहाँ से एलसीएम आएगा पाई माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2, एक माइनस और कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 डैश डैश सो ऑन। अब इसको जस्ट अ मिनट, तो इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट पाई माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 बाई 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 डैश डैश सो ऑन। तो दिस इम्प्लाइज दैट पाई माइनस 2 था।
2 था, तो पाई माइनस 2/4 ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 डैश डैश टू ऑन। तो फाइनली हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारे पास आ गया दिस इम्प्लाइज दैट I minus 2/4 equal to 1/1 into 3 minus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 डैश डैश so on। और यही हमें प्रूफ करना था, hence proved, hence proved। तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ऑड का केस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, solution given fx is equal to x cos x, equation number 1, since fx is equal to x cos x is a odd function, then a naught is equal to 0 and an also equal to 0. So we have to calculate bn only। odd क्यों है? Since f minus x is equal to minus x cos minus x and cos minus theta is equal to cos theta आता है। So this implies that f minus x is equal to minus x into cos x. So this implies that f minus x is equal to minus in bracket x cos x, और x cos x किसके बराबर था? fx के था। So this implies that f minus x is equal to minus fx। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो हमें केवल an निकालना है। Since we know that, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं fx is equal to a naught by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx, equation number 2, and bn is equal to 2 upon pi limit 0 to pi fx sin nx dx। so fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस implies that bn is equal to 2 upon pi 0 to pi fx की वैल्यू है x cos x into sin nx dx। तो दिस implies that, फिर वही फॉर्मूला जो हमने आपको पीछे बताया था, 1/2 0 to pi x into 2 cos x sin nx dx आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, दिस इम्प्लाइज दैट bn इज इक्वल टू 1/pi, ब्रैकेट लगा लेते हैं, लिमिट 0 to pi x in bracket we have sin n plus 1 into x और then plus sin n minus 1 into x ब्रैकेट क्लोज होल dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन अभी लास्ट में हम लोग पूरा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, सेम एज इट इज होगा। bn इज इक्वल टू 1/pi ब्रैकेट 0 to pi x sin
n plus 1 x dx plus 0 to 1 x sin n minus 1 x dx पाई है। अगर इसको आप कंपेयर करो पिछले से तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, सिर्फ एक माइनस और प्लस का डिफरेंस चेंज आना है, बाकी सेम एज इट इज आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम दोनों पार्ट का अलग अलग लिखेंगे। फर्स्ट मीन्स एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 करली ब्रैकेट डबल करली ब्रैकेट यूज किए हैं, माइनस माइनस प्लस साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 टू पाई। अब हम सेकेंड टर्म का लिखेंगे, इसका ब्लू पेन से लिख रहे हैं। देन प्लस करली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन का इंटीग्रेशन कॉस n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1, देन माइनस माइनस प्लस साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर curly bracket बंद limit 0 to pi and then this one. So what happened, either you put the upper limit or lower limit, upper limit or lower limit, in both condition this function will become 0. This function, this red rectangular part will be 0, both cases. So what we will write, this implies that bn is equal to 1 upon pi, in bracket we have upper limit, that means minus pi cos n plus 1 pi upon n plus 1, and second term से बचेगा minus pi cos n minus 1 pi upon n minus 1। अब हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, माइनस पाई कॉमन ले लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। साइड में इनको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सिंस कॉस n पाई इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n, उस रूल से लग गया ये। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू पाई, पाई विल कैंसिल, माइनस माइनस 1 की होल पावर n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो इतना बचने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू, इसमें का एक माइनस बाहर ले लेंगे तो केवल बचेगा माइनस n, ब्रैकेट में आएगा n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद n minus 1 plus n plus 1, 1 will cancel out. So this implies that bn is equal to 2n upon n square minus 1, और in bracket minus 1 की whole power n, but there is a one condition which we have to take care, और वो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है, फॉर n इज इक्वल टू 1 केस विल फेल, केस फेल हो जाएगा सिंस
n square minus 1 is equal to 1 minus 1 is equal to 0. That is 2n upon n square minus is equal to 2n upon 0 is equal to infinity. मैथमेटिकली इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, ये चीज़ आपका रफ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो दैट्स मीन्स ये हमारी जो वैल्यू आई है बी एन की, इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे. किसके लिए? फॉर वन. फॉर n इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई. एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी? x cos x थी. साथ में यहाँ पर आएगा साइन एन एक्स. एन की वैल्यू बनेगा तो केवल साइन एक्स डी एक्स. तो b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट 0 टू पाई x 2 cos x साइन x मिलके क्या होगा सबको पता है. तो दिस implies that b1 is equal to 1 upon pi integration 0 to pi x sin 2x dx. First function, second function. This implies that b1 is equal to 1 upon pi limit 0 to pi x. फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स इसको इंटीग्रेट करते डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको ऐसे. implies that first cos 2x upon 2 limit 0 to pi plus sin 2x upon 4 limit 0 to pi. सिंप्लीफाई करेंगे तो b1 इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस पाई cos 2 पाई अपॉन 2 minus 0 minus minus plus 0 plus 1 by 4 0 minus 0. So finally this gives you a b1 is equal to 1 upon pi into minus pi upon 2 into 1 since cos 2 pi is equal to 1. So this implies that b1 is equal to minus 1 upon 2. This implies that fx is equal to a naught by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity b n sin nx. a naught और b naught की वैल्यू, a naught और a n की वैल्यू 0 है. तो दिस implies that fx का मतलब x cos x is equal to 0 plus 0 plus a1 b1 क्योंकि इसके लिए केस फेल था b1 साइन x प्लस बाकी सिग्मा रहेगा n इज इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी तक की. वैल्यू आई थी 2n अपॉन n प्लस 1 एंड n माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर n. तो दिस इम्प्लाइज दैट x cos x इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2 साइन x प्लस 2 बाहर ले लेंगे सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 n माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n. यहाँ पर साइन nx छूट गया था तो साइन nx. So this implies that x cos x equals to minus 1 by 2 sin x प्लस n की वैल्यू जब 2 लेंगे यहाँ पर ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं. 2 लेंगे तो 2 अपॉन 3 इंटू 1 एंड 2 ले रहे हैं तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, साथ में साइन 2x आएगा. फिर 3 लेंगे तो 3 लेने पे आएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 साइन
3x प्लस माइनस आएगा अगला माइनस 4/5 इंटू 3 और ये हो जाएगा साइन 4x प्लस डैश डैश सो ऑन। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x cos x इज इक्वल टू -1/2 साइन x ओपन द ब्रैकेट। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा +4 साइन 2x अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 6 2 इंटू 4 साइन 3x dash dash minus dash dash so on. This is our final answer. तो ये फाइनल आंसर था बेटा। इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, एक शीट इसके बाद शेयर कर दूँगा। उस शीट में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।